अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलानं च सव्येसिं, मंगलानं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत भરના સંત પુરુષોનું યોગબળ, જગત ભરના સંત પુરુષોનું યોગબળ, જગત ભરના સત્પુરુષોનું યોગબળ જગત ભરના સત્પુરુષોનું યોગબળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો। સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની हम सौ महात्माओने हम સૌ મહાત્માઓને परम शक्ति आपो, शक्ति आपो, शक्ति आपो। પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। जगतना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो, જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો, जगतना सर्व जीवो समाधान ने पामो, જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો, जगतना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो, જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો। जगत कल्याण हो, જગત કલ્યાણ હો, जगत कल्याण हो, જગત કલ્યાણ હો, जगत कल्याण हो। જગત કલ્યાણ હો। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, प्राप्त मन वचन काया थी प्राप्त मन वचन कायाથી आ जगतना कोई पण जीवने आ जगतना कोई पण जीवने किंचित मात्र पण दुख न थाय, किंचित मात्र पण दुख न थाय तेवी स्यादवाद वाणी, एवी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन स्यादवाद वर्तन अने स्यादवाद मनन करवानी अने स्यादवाद मनन करवानी परम शक्ति आपो। परम शक्ति आपो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अध्यात्म विज्ञान एटले सनातन धर्म जे हतो छे अने रहेशे। अने सनातन धर्म ए कुदरतना कानून पर आधारित होय, कारण के कुदरतनो कानून क्यारे बदलातो નથી अने कुदरतनो कानून बधा माटे एमां तमारो कयो धर्म छे, तमारा गुरु कया गुरु छे, तमारा कया भगवान छे, तमारा कया रिच्युअल छे, एने आधारे कुदरतना कानूनने लेवा देवा નથી। तमे पाप करशो तो एनुं फळ आपशे, पुण्य करशो तो एनुं फळ आपशे। पछी तमे गमे तेने मानता हशो, यस के नो, यस दैट्स इट। एनुं नाम कहेवाय लॉ ऑफ नेचर। धर्म श्रद्धा माटे छे,
શેના માટે છે? કે જે શ્રદ્ધાને કારણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી, ભગવાનની પૂજા કરવાથી, આરતી કરવાથી આપણને સારી ભાવના પ્રગટ થાય, આપણામાં સારી માનવતા પ્રગટ થાય, સારું વર્તન, વાણી, વિચારો કરવાનો ભાવ થાય, એકબીજાનું માનવ હિત વિચારતા થાવ, પોતાના પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરી શકો, એના માટે ધર્મ છે. શું છે? અને જેને જન્મ મરણથી મુક્ત થવું હોય એના માટે સનાતન ધર્મ છે. જેને પાપ પુણ્ય સાથે જોડાવવું છે એના માટે સાંપ્રદાયિક ધર્મ છે. જેને જન્મ મરણથી મુક્ત થવું હોય એના માટે સનાતન ધર્મ છે. સનાતન ધર્મ એટલે રામકૃષ્ણ મહાવીર, અને તે પહેલા પણ હતો, છે અને રહેશે. સનાતન ધર્મનો સ્થાપક ના હોય એટલે એની બિગિનિંગ ના હોય. જેની બિગિનિંગ હોય એનો એન્ડ હોય. શું હોય? જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ છે, જેની શરૂઆત છે એનો એન્ડ છે. અને સનાતનની બિગિનિંગ પણ ના હોય, એન્ડ પણ ના હોય. અન્ય તમામ સાંપ્રદાયિક ધર્મના સ્થાપક બતાવી શકો. શું કીધું? સાંપ્રદાયિક ધર્મનો સ્થાપક, કે આ ધર્મની સ્થાપના ક્યારે થઈ, ખ્યાલ આવ્યો? સનાતન ધર્મનો સ્થાપક ના હોય. અને તમામ મહાન પુરુષોએ સમય સમયે આ જ સનાતન ધર્મને આગળ લઈ ગયા. શું લઈ ગયા? સમજાય છે? રામે પણ આ જ સનાતન ધર્મની વાત કરી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પણ આ સનાતન ધર્મની વાત કરી, અને ભગવાન મહાવીરે પણ આ સનાતન ધર્મની વાત કરી. એવા હજારો મહાન પુરુષોએ આ જ સનાતન ધર્મની વાત જે તે સમયે કરી. કાળક્રમે એમના ગયા પછી આ સનાતન ધર્મ સાંપ્રદાયિક ધર્મ થઈ ગયો, વ્યક્તિ વિશેષ. એટલે પછી સનાતન રહ્યો નહીં. સનાતન ધર્મમાં હું આત્મા છું તે આવે. સનાતન ધર્મમાં કર્મનો સિદ્ધાંત આવે, જે જીવ માત્રને એક જ સરખો લાગુ પડે છે. સનાતન ધર્મમાં પુનર્જન્મની વાત આવે, જે જીવ માત્રને લાગુ પડે છે. સનાતન ધર્મમાં મુક્તિની વાત આવે, જે સનાતન ધર્મમાં બધા ધર્મોમાં આવે. સનાતન ધર્મમાં સાચા સુખની વાત આવે, માનેલું સુખ નહીં, ટેમ્પરરી સુખ નહીં, કાયમી સુખ. અને કાયમી સુખ એ આત્માનો સ્વભાવ. એટલે ભારત વર્ષના ઇતિહાસની અંદર જે મહાન પુરુષો થઈ ગયા એ બધાએ નિષ્પક્ષપાતી સનાતન ધર્મને પ્રેઝન્ટ કર્યો. પણ કાળક્રમે નિષ્પક્ષપાતી દ્રષ્ટિવાળા અનુભવી જ્ઞાની પુરુષોનું જેમ જેમ પ્રમાણ ખલાસ થતું થયું એમ સાંપ્રદાયિક ધર્મો આગળ આવ્યા. કયા આવ્યા? અને સાંપ્રદાયિક ધર્મો એટલે એક ધર્મ વાળો, એક સંપ્રદાય વાળો બીજા સંપ્રદાયને ના માને, બીજા સંપ્રદાય વાળો ત્રીજા સંપ્રદાયને ના માને, ત્રીજા સંપ્રદાય વાળો ચોથા સંપ્રદાયને ના માને. સમજાય છે? એટલે આપણે શું થઈ ગયા? સનાતન ધર્મમાં એક હતા, સાંપ્રદાયિક ધર્મમાં શું થઈ ગયા? એટલે આપણે મજબૂત થયા કે નબળા પડ્યા? સમજાય છે? હિન્દુ ધર્મ એ સનાતન ધર્મ હતો. હિન્દુ એ ખરેખર ધર્મ નતો, ફિલોસોફી હતી. શું હતી? અને એ જ સનાતન ફિલોસોફીને મહાન પુરુષે કૃષ્ણ ભગવાને પણ આ જ વાત કરી. હું આત્મા, કર્મનો સિદ્ધાંત, પુનર્જન્મ, મોક્ષ, એ જ વાત કરી. રામે પણ એ વાત કરી, મહાવીરે એ વાત કરી. કારણ કે એ લોકોએ સનાતન ધર્મની વાત કરી, જે હતો જ, એમના જન્મ પહેલા પણ હતો. પણ એમના ગયા પછી એમની પરંપરામાં લોકોએ રામનો ધર્મ અલગ કર્યો, કૃષ્ણનો અલગ કર્યો, મહાવીરનો અલગ કર્યો, શિવનો અલગ કર્યો. એટલે આપણે એક થયા કે ડિવાઈડ થયા? સમજાય છે મારી વાત? આખા વર્લ્ડની અંદર સનાતન ધર્મ એવો છે કે આખા વર્લ્ડને માર્ગદર્શન આપવાની ક્ષમતા પહેલેથી જ ધરાવતો હતો. આજે નહીં,
પણ તમે ડિવાઈડ થઈ ગયા તો દુનિયા કેવી રીતે માને? રામ વાળો કૃષ્ણ ના માને, કૃષ્ણ વાળો મહાવીરને ના માને, મહાવીર વાળો શિવને ના માને. દુનિયાને શું લાગે? આમાં સનાતન જેવું તો કોઈ છે જ નહીં. યસ કે નો? તમે જ તમારા પગ ઉપર કુહાડ મારો છો. ઓલ ધ ગ્રેટ પીપલ આર રિસ્પેક્ટેડ ફોર અસ. બધા જ આપણા માટે વંદનીય છે ને એ લોકોનું જ્ઞાન આપણા માટે ઉપયોગી અને ઉપકારી છે. પણ જ્યારે તમે એકને માનતા હોય ને બીજાને ના માનતા હોય એવું તમને ભણાવવામાં આવતું હોય પછી શું થાય? બતાવો મને. Then who is responsible? ધર્મગુરુ. આ મંદિરમાં જવાય, આ મંદિરમાં ના જવાય, આ ગુરુને મળાય, આ ગુરુને ના મળાય, આ ભગવાનમાં જવાય, આ ભગવાન મળાય. આ કોણ શીખવાડે છે? આપણે શીખીએ છીએ કે કોઈ શીખવાડનાર છે? અને પછી કે આપણે મજબૂત થવું છે? પહેલા પગ ઉપર કુવાડો મારવાનો, પછી કે મજબૂત થવું છે? સમજાય છે કે નહીં? તમામ ધર્મગુરુઓએ આ જ વાત કરવી જોઈએ. તમને જ્યાંથી સાચું જ્ઞાન મળતું હોય ત્યાંથી તમારે લેવું જોઈએ. જ્યાંથી મળતું હોય ત્યાંથી. અહીંયા જ જ્ઞાન છે ને બીજે નથી એવું કહીને તમે શું સાબિત કરો છો? કે આઈ એમ રાઈટ ને ધે આર. આ જ કહો છો ને. પછી પેલું શું કહે કે આઈ એમ રાઈટ ને યુ આર. આમાં શું થાય? આપણે મજબૂત થઈ કે ડિવાઈડ થઈ? સમજાય છે? હવે એમાં સનાતન ધર્મ ક્યાંથી સમજાય? સમજાય છે? આપણે જ આપણી પગ ઉપર કુહાડો માર્યો છે. સાચો ધર્મ સમજાયું જ નહીં ને. સાચો ધર્મ હતો પહેલો. જ્યારે આપણને આ મુક્તિના માર્ગની ખબર ના પડે ત્યારે આખા વર્લ્ડમાં પહેલામાં પહેલો ધર્મ હોય માનવ ધર્મ, જેમાં કોઈનું સિમ્બોલ ના આવે. શું ના આવે? માણસ એ જ ભગવાન. એટલે માનવતા. શું કીધું? કોઈ પણ માણસને મુશ્કેલી હોય અને હું સમર્થ હોઉં તો મારાથી થાય એટલી હેલ્પ કરવી જોઈએ. તનથી, મનથી, ધનથી. એ ના થાય તો વાણીથી, એ ના તો સારી ભાવનાથી. પણ થાય કે ના થાય? એને માનવતા કહેવાય. પછી એની નાત શું છે, જાત શું છે, ધર્મ શું છે, ગુરુ શું છે, ભગવાન શું છે એ વચ્ચે આવતું. એ માણસ છે ને અને એને મુશ્કેલી છે તો મારે હેલ્પ કરવી. એને માનવ ધર્મ કહેવાય. શું કહેવાય? એને ધર્મ સંપ્રદાય સાથે લેવા દેવા. એનાથી ઉપર જાઓ ત્યારે આત્મધર્મ આવે. આ રામકૃષ્ણ, મહાવીર, શિવ ને સ્વામિનારાયણ આ બધા આત્મધર્મ શીખ્યો. મૂળ પુરુષોએ. એમના ગયા પછી શું થઈ ગયો? સંપ્રદાય. સમજાય છે? આપણા ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એ હિન્દુત્વને ફેરથી જગાડવા માંગે છે. સંપ્રદાયની નહીં. સાંભળજો મારી વાત. We are united as a Hindu, not religion. Religion માં તો આપણે divided છે. Yes કે no? Yes. But as a Hinduism, we all are united. ને હિન્દુત્વ ને જગાડવા માટેની વાત કરે છે. આ હિન્દુસ્તાન હિન્દુઓ માટેનો દેશ છે. વર્લ્ડમાં એક પણ દેશ એવો નથી કે જેને હિન્દુઓનો દેશ કહેવાય. મુસલમાનોનો દેશ છે, ક્રિશ્ચિયનોનો છે. યુરોપ, અમેરિકા ક્રિશ્ચિયનોનો દેશ કહેવાય. મુસલમાનોના અનેક દેશ, 52-54 દેશ છે. હિન્દુઓનો કયો દેશ? એકે નહીં. સમજાય છે? હિન્દુને કોઈ કાઢી મૂકે તો જાય ક્યાં? બોલતા નથી. ના પણ એટલે કન્ટ્રી થોડો છે. તમે વિચાર કરો. આપણે જ આપણા પગ ઉપર કુહાડો માર્યો છે. તો ભાઈ તમે રામને માનો, કૃષ્ણને માનો, મહાવીર, શિવ, સ્વામિનારાયણ ગમે તેને માનો, પણ વી ઓલ આર બિલીવ ઇન હિન્દુ ફિલોસોફી. એ તો એક જ છે. આપણે બધા આત્માને માનીએ છીએ, કર્મના સિદ્ધાંતને માનીએ છીએ, પુનર્જન્મને માનીએ છીએ, મોક્ષને માનીએ છીએ. ક્યાં વાંધો છે? પાપ પુણ્યને માનીએ છીએ. That's it. So we are equal. Symbol is a different thing, but the principle is same. Yes કે no? આજે દુનિયાનો આજે ભારત વર્ષની અંદર માનો કે 1000 કોલેજ હોય, 1000 કોલેજ અથવા તો 10,000 સ્કૂલ હોય, પણ તમને સ્કૂલની અંદર મેથ્સ ભણાવે
તો બધા સરખું ભણાવે કે અલગ અલગ ભણાવે? એક જ હોય ને સિલેબસ. તો સ્કૂલનું નામ અલગ હોય, પ્લેસ અલગ હોય, ટીચર અલગ હોય, પણ સિલેબસ યસ કે નો? તો આપણો હિન્દુ ફિલોસોફીનો સિલેબસ કયો છે? એક જ છે. ટીચર ભલે ગમે તે હોય, યસ કે નો? ટીચર ગમે તે હોય, સિલેબસ આ જ છે. હું આત્મા છું એ બધાને કહેવું જ પડશે, ગમે તેને માનતા હશે. કર્મનો સિદ્ધાંત બતાવવો જ પડશે, ગમે તેને માનતા હશે. પુનર્જન્મની વાત કરવી જ પડશે, પાપ પુણ્યની વાત કરવી જ પડશે, મુક્તિની વાત કરવી જ પડશે, ગમે તેને માનતા હોય. તો આપણે બધા એક જ છે ને. ટાઇટલ ગમે તે આપો, રામનું આપો, કૃષ્ણનું, મહાવીરનું, શિવનું, સ્વામિનારાયણ, ગમે તે આપો, બટ ધ પ્રિન્સિપલ ઇઝ શા માટે ડિવાઈડ થાવ છો? ભૂલ આપણી છે. સમજાય છે? અને માટે આપણે સાંપ્રદાયિક ધર્મને કારણે સનાતન ધર્મ ચૂકી જઈએ છીએ. સમજાય છે? હિન્દુસ્તાનની અંદર પહેલેથી જ યાત્રા કરવાની પરંપરા છે. અને માણસ જ્યારે યાત્રા કરવા નીકળે ત્યારે અનેક પ્રકારના મંદિરો આવતા હોય, રસ્તામાં દર્શન કરતા કરતા જાય. એ કયા ભગવાન છે એવું જોતો નહોતો, કોઈ પણ મંદિરમાં દર્શન કરવા જાય. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે યાત્રામાં જે આવે ત્યાં જાય, જે આવે ત્યાં જાય, રોકાય. પહેલા તો ચાલીને જવાનું હતું, એટલે 2 માઇલ 5 માઇલ 10 માઇલ ચાલે, પછી ત્યાં રોકાય, જે મંદિર આવે ત્યાં દર્શન કરે, રાતવાસો કરે, ખાય પીને પાછો આગળ જાય. અને દરેક જગ્યાએ જાવ તો ભક્તિભાવ તો હોય જ. ભક્તિભાવ, પૂજાપાઠ, આરતી, આ બધું હોય જ. એ વખતે ભેદભાવ નતો, ત્યાર પછી ભેદભાવ થયા. અને એને કારણે જે સનાતન ધર્મ હતો એ સનાતન ધર્મ ડિવાઈડ થઈ ગયો. એટલે આપણે બધા શક્તિશાળી હોવા છતાં શક્તિહીન થઈ ગયા. શું થઈ ગયા? શક્તિહીન. હા, બાપાએ તો ફેક્ટરીની સ્થાપના કરી નાખીને ફેક્ટરી ધમધોકાર ચાલતી હતી. પણ જેવા બાપા ગયા એટલે 4 ભાઈઓ કે છે મને આટલો હક મળવો જોઈએ, મને આટલો હક મળવો જોઈએ, એટલે ફેક્ટરી શું થઈ ગઈ? બંધ થઈ ગઈ. ફેક્ટરીમાં 4 કરોડ રૂપિયાનું બેલેન્સ હતું ને 4 કરોડના બેલેન્સ ફેક્ટરી ચાલતી હતી. પણ દરેક ભાઈઓ 1 કરોડ લઈ લીધા. હવે ફેક્ટરી કેમ નહીં ચાલે? બોલતા નથી. ભૂલ બાપાની કે છોકરાની? છોકરાની ભૂલ કરી. બાપા ચાલુ જ હતી ને, બાપા હતા તારે. એ ગયા પછી બંધ થઈ ને. એ શું અરેન્જમેન્ટ કરે? જીવતા સાંભળતા નથી, ગયા પછી કોણ સાંભળે? જીવતા નથી સાંભળતા તો ગયા પછી કોણ? એટલે કહેવાનો મતલબ આપણી દાનતખોરી થવા મળે. શું થવા મળે? દાનતખોરી. ધેટ્સ ઇટ. વિચાર કરો, માણસ પોતે ત્યાગ લે છે. ત્યાગ લે છે ત્યારે ઘર બાર પરિવાર સાધન સંપત્તિ બધું છોડી દે છે. શેના માટે? એક આત્મ સાધના માટે. આ જગતનું સનાતન સત્ય સમજવા માટે એ બધું પરિવારને બધું છોડે છે. સંપત્તિ, સત્તા, સગવડો, સુખો બધું છોડે છે એક સાધના માટે, આત્મ સાધના. બરાબર છે? ત્યાં ગયા પછી સાધના નહીં કરવાની, ત્યાં ગયા પછી સંપત્તિ ભેગી કરવાની. ના સમજાણો? સરસ મંદિર બનાવો મારા નામનું, મારા નામ ઉપર સરસ સંસ્થા બનાવો, શિષ્યો વધારો. સમજાય છે? પેલે ઘર છોડી દીધું 6 માણસનું ને અહીંયા 6000 વગાડ્યા. બોલતા નથી. 6 માણસોથી કંટાળી ગયો હતો, સંસાર લાગતો હતો. અહીંયા 6000 માં ત્યાગ લાગે છે. બોલતા નથી. પેલું ઘર પરિવાર હતો, દુકાન ચલાવવાની ટેન્શન લાગતું હતું. ખ્યાલ આવી ગયો? અહીંયા મંદિર ચલાવવામાં ટેન્શન નથી લાગતું એને. ત્યાં પૈસાનો વેપાર, અહીંયા પૈસાનો વેપાર. બોલતા નથી. આ સંસ્થા પૈસા વગર ચાલે? તો દુકાન પૈસા વગર ચાલે? તો પૈસા ક્યાં નથી? તો પછી એમ કેમ તમે ત્યાગ લીધો? તમે ત્યાગ્યું શું? ઘર છોડ્યું ને સંસ્થા બનાવી, પરિવાર છોડ્યો ને શિષ્યો બનાવ્યા. પૈસાનો વ્યવહાર તો અહીંયા રહ્યો ત્યાં આવ્યો.
બોલતા નથી તો ત્યાગ્યું શું? કઈ નહીં. મહારાજ બોલતા નથી ભેગું કર્યું વધારે. ના, પણ તો ત્યાગવાનું કહીએ છીએ ને, ત્યાગી દીધું એમને, તારે તો આપણે પગે લાગીએ છીએ. તો હું પ્રશ્ન એવું પૂછું છું, ત્યાગ્યું શું એ લોકોએ? ભેગું કર્યું કે ત્યાગ્યું? ભેગું કર્યું. અને આપણે કહીએ ત્યાગી છે. ઘરમાં સગવડ નથી એવી અહીંયા મંદિરમાં સંસ્થામાં સગવડ હોય છે. ઘરમાં પંખો ન તો અહીંયા 2 એર કન્ડિશન. બોલો હવે કયો ત્યાગ કહેવાય? ઘરમાં સાયકલ નથી ને 4 ગાડીઓ. હવે ત્યાગ શેનો કર્યો એ જ ખબર નથી. યસ કે નો? ધેટ ઇઝ ધ ફેક્ટ. અને માટે સનાતન ધર્મ ના સમજાય ત્યાં સુધી નિવડો નહીં આવે. બધાએ સનાતન ધર્મ સમજવો પડશે, જે હતો છે અને રહેશે. સનાતન શબ્દનો મતલબ સ્થાપક ના હોય, અને સનાતન શબ્દનો મતલબ જેનો નાશ ના થઈ શકે. બે વસ્તુ સમજી લેવાની. અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આવે પણ મૂળમાંથી જાય નહીં. સમજાય છે? આપણા ભારત દેશની અંદર મુસલમાનોએ રાજ કર્યું, અંગ્રેજોએ રાજ કર્યું 400, 200, 600 વર્ષ. છતાં પણ આપણો ધર્મ અને સંસ્કૃતિ ખલાસ કરી શક્યા? વિચાર કરો, તમે વિચાર કરો. સમજાય છે? કેટલો પાવરફુલ. કારણ કે સનાતન છે. એક હિન્દુ જીવતો હોય ત્યાં સુધી હિન્દુ ધર્મ નાશ થઈ શકે જ નહીં. સંકોચાય પણ ખલાસ ના થાય. સમજાય છે? કારણ કે જે જીવો અનાદિકાળથી જન્મ મરણના ચક્કરમાંથી માર ખાતા ખાતા આવ્યા છે, અને એની સમજણ ડેવલપ થયેલી હોય, અને એ ડેવલપ થયેલી સમજણમાં એને આ જગતનું સનાતન સત્ય એની ભાષામાં સમજાતું હોય, તો એ ફિલોસોફીને ભૂલી ના શકે. થોડા સમય માટે છોડી દે, મોહને કારણે કે દબાણને કારણે કે પોતાનું જીવન બચાવવા માટે એ થોડા સમય માટે ધર્મ છોડી દે. પેલો ગન લઈને આવ્યો તો કે કન્વર્ટ થઈ જાય બચાવ. સમજાય છે? હાવ ભિખારીઓ ને પેલો કે હું ખાવા પીવા કપડાં આપીશ તો એ બચારો બદલી જાય. એની મજબૂરી છે, એનો ઇન્ટરેસ્ટ. સમજાય છે? એને ધર્મ પરિવર્તન કહેવાતું નથી, મજબૂરી કહેવાય છે. આખા વર્લ્ડની અંદર આ હિન્દુ ધર્મ જ એક એવો છે કે જેમાં લોકો વિલિંગલી જોડાય છે. નથી કોઈ પ્રલોભન કે નથી કોઈ ધમકી. કોઈને આપણે ધમકી આપતા નથી કે તમારે જોડાવવું પડશે, કે પ્રલોભન આપતા નથી, પૈસા આપીશું, આમ આપીશું, એવું પણ કહેતા નથી. લોકો વિલિંગલી આવે છે. સો ધેટ ઇઝ ધ ગ્રેટનેસ ઓફ ધ રિલિજન. અહીંયા કોઈ પ્રલોભન નથી આપતા કે ધાક ધમકી પણ નથી. અમુક ધર્મોમાં, ક્રિશ્ચિયન ધર્મમાં પ્રલોભન આપે, ખાવા પીવા કપડા. માણસ બચારો કન્વર્ટ થઈ જાય, શું થાય? મજબૂરી છે. અને અમુક મુસલમાન ધર્મ એવા હોય કે જેમાં મારી ઠોકીને કરે, જે આપણે જોયું, આપણે સી ધ હોલ હિસ્ટ્રી. એવું આપણામાં, એવા હિન્દુ ધર્મમાં લોકો આજે વર્લ્ડની અંદર તમે જો, આખા વર્લ્ડમાં સૌથી વધારે ડેવલપ થયેલો, ડેવલપ એટલે માસ ઓફ પીપલમાં ફેલાયેલો રિલિજન હોય, જેમાં વર્લ્ડના બધા દેશના ઓછે વચ્ચે ઓછો લોકો જોડાયા છે, તો આ એક હિન્દુ ધર્મ. કોઈ મોટી સિટી બાકી નહીં હોય જ્યાં ઇસ્કોનની સંસ્થા નહીં હોય, જ્યાં બ્રહ્માકુમારીની બ્રાન્ચ નહીં હોય, જ્યાં યોગ અને ધ્યાનના ક્લાસ નહીં હોય. એવા વર્લ્ડમાં એક પણ સિટી નહીં હોય. સમજાય છે? That is the greatness of the philosophy. બધા જ લોકો સ્વીકારે. જ્યારે યોગાની વાત આવી, યોગાસનની, ત્યારે લોકો એમ કીધું કે આ તો હિન્દુઇઝમ છે. આજે વર્લ્ડમાં બધા એક્સેપ્ટ યોગા ડે જાહેર કર્યો, યુ નો એ? યસ કે નો? પછી મેડિટેશન હતું તો કે મેડિટેશન તો આ તો હિન્દુ ધર્મ છે. અત્યારે બધા ધ્યાન કરે છે પીસ માટે. પછી આપણા ધર્મની અંદર ગરબા હતા, ભક્તિ હતી,
તો લોકોને લાગે આ હિન્દુઇઝમ છે, હવે ઇસ્કોનમાં હરે રામ હરે કૃષ્ણ બધાય નાચે છે. યસ કે નો? ધેટ ઇઝ અવર ફિલોસોફી. કારણ કે અહીંયા આગળ કોઈ ધાક ધમકી પ્રલોભન નથી. ધેટ ધ ગ્રેટનેસ ઓફ રિલિજન. સમજાય? એટલે આવી રીતે આવો અદ્ભુત આધ્યાત્મ ફિલોસોફીનો માર્ગ છે, હિન્દુ ફિલોસોફીનો માર્ગ છે, જે આપણને બધાને સમજવા મળે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે આપણું આ જે રિલિજન છે, હિન્દુ ફિલોસોફી, એટલું અદ્ભુત છે જો સમજાય તો. ये ऐसी सिचुएशन क्यों है, ऐसी स्थिति क्यों है? ऐसी स्थिति इसीलिए बनी क्योंकि बुद्धिशाली लोग और थोड़े बहुत समर्थ लोग फिलोसॉफी को या धर्म को पैसा कमाने का, मान सम्मान प्राप्त करने का, स्टेटस प्राप्त करने का साधन समझने लगे. कंपटीशन एंड कंपैरिजन कब आएगी? हरीफाई होगी तभी तो. If I follow the universal truth science, I realize it, and I try to say to the people of the world, there is no competition, no comparison. मगर मैं उनके साथ, मेरे को फॉलोअर्स मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए, मेरी बहुत ब्रांचेस बननी चाहिए, then it's a competition and comparison. फिर स्पिरिचुअल साइंस रहेगा, सनातन फिलोसॉफी रहेगी नहीं, फिर सांप्रदायिक, फिर आपको कहना पड़ेगा यहाँ जो है वो ही सब कुछ है और जगह पे नहीं. बस यही कंपटीशन है, कंपटीशन. और हमारे आध्यात्म विज्ञान में तो साफ बोल दिया है, कोई भी व्यक्ति आके विज्ञान को समझ सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और दूसरे को बांट सकते हैं, क्योंकि ये विज्ञान सनातन है, कोई व्यक्ति का नहीं है. इसीलिए किसी से कंपटीशन कंपैरिजन तो है ही नहीं. किससे करेंगे? सनातन धर्म के अलावा और कोई सनातन धर्म हो सकता है? नहीं हो सकता है. सांप्रदायिक धर्म हो सकता है, सनातन कैसे हो सकता है? तो ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि हमको ये सनातन धर्म मिला है. जिस सनातन धर्म के माध्यम से, जिस फिलोसॉफी के माध्यम से, और इस फिलोसॉफी के माध्यम से जब हम कुदरत को, यानी 6 सनातन तत्व और कुदरत के कानून को समझ सकते हैं और कुदरत ने बनाई हुई अवस्थाओं को समझ सकते हैं, और ये मन वचन काया जो कुदरत ने साधन के रूप में, कर्मों के भुगतान का साधन के रूप में हमको दिया है, ये सब कुछ बातें जब हम समझ सकते हैं तो समझ लेना, ये बातें समझ में आती है तो हमारा आध्यात्मिक सोच का लेवल क्या है. ये कोई साधारण बात नहीं है. आज तक जो साधु संत सन्यासी जो बात नहीं समझ सके, या तो जो बात लोगों को नहीं समझा सके, ये सब बातें आप समझ रहे हो. और ये बातें ऐसी है कि जिसका कोई विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कंपटीशन और कंपैरिजन ही नहीं है ना. जब हम 6 तत्व की बात करेंगे तो कि 7वां तत्व तो बताएगा नहीं. जब हम कुदरत के कानून की बात करेंगे तो और कोई तो कानून होगा ही नहीं. तो किसके साथ कंपटीशन कंपैरिजन? कुछ भी नहीं रहेगी. जब हमने कहा कि मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है. क्या है? साधन मात्र है. और मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है. और मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? कुदरत है. अगर ये बात समझ में आती है तो समझ लेना आपने सभी वेदांतों का ज्ञान जान लिया. अभी आपको अनुभव ही करना है. बस क्या करना है? अनुभव. फैक्ट तो जान लिया, अभी क्या करना है? रियलाइज करना है. और फैक्ट के अंदर रिचुअल्स नहीं होती है, फैक्ट के अंदर रिलेटिव ट्रूथ नहीं होता है, फैक्ट के अंदर फॉर्मेट नहीं होता है. फॉर्मेट ही तो पार्टीशन है, फॉर्मेट ही तो डिवीजन है ना.
तुम्हारा अलग मेरा अलग, ये तो फॉर्मेट है। यूनिवर्सल ट्रूथ में डिवीजन नहीं होता है। मैंने कितने सालों से कहा, when you project the persons you never understand the universal truth science। समझ में आया? अगर आप व्यक्ति को प्रोजेक्ट करेंगे तो आप सनातन सत्य नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सनातन सत्य व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसको व्यक्ति का कहोगे तो फिर पहले नहीं था, और अगर उनका था तो उनके जाने के बाद खत्म हो गया। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल ट्रू साइंस एज अ पर्सन, तो वो परमानेंट नहीं हो सकता है। समझ में आया? कोई भी व्यक्ति की बात है। रामकृष्ण महावीर, उसके पहले भी तो सनातन धर्म था। बाद में अभी भी है और बाद में भी रहेगा। सनातन धर्म कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, अप्स एंड डाउन्स आता है समय और काल के मुताबिक, खत्म कभी नहीं होता है। सनातन का मतलब ही तो यही है, हम समझ नहीं पाए और धर्मों को हमने सिर्फ पैसा कमाने का साधन बना दिया। क्या बना दिया? That's it। जो सनातन को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए जो सनातन मार्ग था, साधना करने के लिए ये मार्ग था, कुछ सिद्ध करने के लिए ये मार्ग था, वो मार्ग हमने क्या बना दिया? पैसा कमाने का साधन, मान सम्मान प्राप्त करने का साधन, स्टेटस प्राप्त करने का साधन, बस खत्म हो गया। ये सब बातें, स्टेटस, मान सम्मान और लक्ष्मी, ये तीनों चीज कंपटीशन एंड कंपैरिजन के ऊपर आधारित है। समझ में आया? दैट्स इट। ये जीवन में होगी तो कंपटीशन कंपैरिजन होगी ही, और इसीलिए फिर सनातन धर्म का, आप सनातन धर्म की बात नहीं कर सकते। संख्या कितनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बताया? कितनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। राम और कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे लाइफ में, होल लाइफ के अंदर 5 व्यक्तियों के सामने कभी प्रवचन नहीं किया है। यस और नो? तो क्या वो महान नहीं है? महान संख्या से होते? बोलते नहीं है। दैट्स इट। आपके ज्ञान में, दर्शन में पावर है। आज नहीं तो कल दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा, उनके लिए, आपके लिए नहीं। आज हम राम कृष्ण महावीर को मानते, उनके लिए मानते हैं कि हमारे लिए मानते हैं? खुद के लिए मानते हैं। तो बात ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष आती है और समझती है तभी उसके ज्ञान की वैल्यू होती है, वो समझने की जरूरत नहीं है। ज्ञान में पावर होगा तो आज नहीं तो कल भी दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा। आज जितने भी भौतिक साइंटिस्ट हो गए वो सब बात बता के चले गए, आज भी हम इसको मानते। क्यों मानते? क्योंकि उनकी बात सनातन है, क्योंकि उनकी बात सिद्धांतिक है, नहीं कि वो व्यक्ति महान है। इसीलिए उन्होंने जो संशोधन किया वो आज भी हमारे काम में आता है, सो हम इसको याद करते हैं। समझ में आया? आपकी बात में पावर होना चाहिए। आज माने या ना माने क्या फर्क होगा? अगर आपकी बात में सच्चाई है तो आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा, और वो खुद के लिए, उनके लिए नहीं। हम क्या कहते हैं? हम जब आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं तो हमने क्या कहा? आज नहीं तो कल दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सनातन सत्य है, कोई व्यक्ति का सत्य नहीं है। ये कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, और कुदरत का कानून तुम मानो या ना मानो, तुम उससे ऊपर जा नहीं सकते हो। खत्म हो गई बात। समझ में आया क्या? नहीं। इसीलिए कॉन्फिडेंस आता है कि आध्यात्म विज्ञान आज नहीं तो कल लाखों व्यक्तियों के सामने जाएगा, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान खुद ही पावरफुल है। और जो जो व्यक्ति आज नहीं तो कल जानेगा, समझेगा, सुनेगा, समझने का प्रयास करेंगे तो नक्की ये विज्ञान में से कुछ न कुछ पाएगा। और जैसे संशोधन करेंगे तो वो आगे भी बढ़ेगा। कीजिए, प्रश्न कीजिए।
पे हम कुछ सूत्र पढ़ रहे थे, अध्यात्म विज्ञान के स्वर्णिम सूत्र, और इसमें जो है हमें ये पूछना है कि जी वांटेड टू नो कि ये त्रियंच जो हमने मेंशन किया है यहाँ पे कि कोई भी जीव कोई भी क्रिया करने, बोलने, विचारने में स्वतंत्र नहीं है। शरीर कर्म भोगने के लिए मिलता है। कर्म के अनुसार देव, मनुष्य, नारकी, त्रियंच का ऐसे 4 गति होती मिलता है। सो ये जो त्रियंच है ये कौन सी गति है? मनुष्य के अलावा जो गति है सब एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, वो सब त्रियंच गति है। त्रियंच गति यानी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय। फिर आती है मनुष्य। मनुष्य में और त्रियंच में क्या फर्क होता है? मनुष्य में भी 5 इंद्रियां हैं, त्रियंच में भी 5 इंद्रियां मैक्सिमम है। क्या है? मिनिमम 1 से मैक्सिमम 5 है। मगर त्रियंच में आहार, भय, मैथुन, निद्रा की संज्ञा होती है। यहाँ बुद्धि है। और बुद्धि है तभी पुरुषार्थ है, वहां बुद्धि है नहीं। वहां जीवन जीने के लिए, यहाँ प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। बुद्धि है ना, उनके पास बुद्धि नहीं है। केवल दर्शन तक ही पुरुषार्थ होता है। केवल ज्ञान उसका परिणाम है, उसमें पुरुषार्थ नहीं होता है। उसको थोड़ा सा केवल दर्शन तक ही पुरुषार्थ है। यानी केवल दर्शन का मतलब होता है ये रिलेटिव सत्य वाला जो जगत हम 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं वो रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब टेम्पररी। टेम्पररी जो है उसका पीछे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है वो नहीं जानना, उसी का नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान नहीं निकलेगा वहां तक केवल दर्शन नहीं होगा। अज्ञान 0 नहीं होगा, नहीं निकलेगा। अज्ञान कम होगा, इतना डेवलपमेंट बढ़ेगा। और अज्ञान 0 हो गया मतलब आपको केवल दर्शन हो गया। क्या हो गया? केवल दर्शन। और केवल दर्शन हुआ तो कर्म नहीं बनेगा, अज्ञान ही नहीं है तो कर्म अज्ञान से बनते हैं। फिर आगे कहा कि पुरुषार्थ केवल दर्शन तक है, केवल ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं है। केवल ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव के लिए पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? जी। केवल ज्ञान वो आत्मा का क्या है? आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है तो फिर मेहनत की जरूरत क्या है? तो फिर है तो अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि रॉन्ग बिलीफ का कर्टेन, रॉन्ग बिलीफ का, कर्म का नहीं, रॉन्ग बिलीफ जिसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म का कर्टेन है। जो मन वचन काया से भुगतान करते हैं वो कर्म मुक्ति के मार्ग में बाधक नहीं है। समझ में आया? जो कर्म मन वचन काया से जन्म से मौत तक भुगतान करते हैं वो मुक्ति के लिए बाधक नहीं है। वो तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान के बाद भी रहेगा, क्योंकि वो कर्मों का फल है। वो पुरुषार्थ में बीच में नहीं आता है। पुरुषार्थ में बीच में कौन सा आएगा? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं। इसको कैसे माइनस करोगे? मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा लक्ष्य में रख के इसको निकालने का है। मैं शरीर हूं, मैं या मैं नामधारी हूं। फिर मिथ्या दर्शन, ये मन वचन काया को मैं चला रहा हूं, ये मन वचन काया भुगतान कर रही है वो मैं कर रहा हूं, सत्ता संपत्ति संबंध साधन मेरा है, ये सब मिथ्या दर्शन है। तो सम्यक दर्शन क्या है? मन वचन काया और मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध और साधन और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो कुदरती रचना है, तो वो सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग यही मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को समाप्त करना है, इनटू इन्वर्टेड कोमा अज्ञान को समाप्त करना है। और तीसरा रहा मोहनीय कर्म। सुख संसार में है, सुख 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, ये मोहनीय कर्म है। और सुख आत्मा में ही है, वो निर्मोही दशा की प्राप्ति का मार्ग है जहां मोह नहीं है। आत्मा का स्वभाव ही सुख है।
मगर जहां सुख नहीं है वहां सुख मानना, इसीलिए उसको मोहनीय कर्म बोला जाता है ही नहीं। एक माँ से कहते हैं, स्वामी जी हम आइसक्रीम खाते हैं तो हम सुख महसूस करते हैं, फिर हम कैसे कहेंगे कि सुख नहीं है? स्वामी जी हम पैसा प्राप्त करते हैं तो सुख महसूस करते हैं, फिर सुख नहीं है ऐसा कैसा बोलेंगे? हम मकान में रहते हैं तो मकान में जाते हैं तो सुख महसूस होता है, फिर सुख नहीं है ऐसा कैसे कहोगे? तब मैंने कहा आपके पास मकान भी है, आपके पास पैसा भी है, और आपके पास खाना पीना भी है, और आपके पास शरीर भी है, मगर आत्मा नहीं है तो बोलते नहीं है। क्यों? जो सुख माना वो तो आपके पास है, उसके बिना शरीर नहीं चलेगा। शरीर भी है भुगतान करने वाला, और जो सुख माना वो साधन भी आपके पास है, मगर आत्मा निकाल दोगे तो कहने का मतलब है जब आत्मा शरीर के अंदर है तो आपको मकान में, पैसे में, खाने पीने में सुख लगता है। जब आत्मा निकाल दिया तब बोलता है आत्मा के बिना सुख ही नहीं है। तो पहले बोलो ना, सही बात, पहले बोलो कि आत्मा के बिना सुख नहीं है। प्रश्न ये है क्यों ऐसा कहा गया शास्त्रों में? क्योंकि अनुभूति चेतन ही कर सकता है, जड़ नहीं कर सकता। अगर हम मुर्दे को कहेंगे लो तुमको 1000 पाउंड देंगे, क्या सुख महसूस करेगा? क्यों? नहीं, मगर शरीर तो है, आत्मा नहीं है। तो फिर आत्मा फिर बाद में क्यों आती है? पहले क्यों नहीं बोलते? आत्मा है इसीलिए शरीर है, और फिर मान्यता है तभी डॉलर में सुख का अनुभव होता है। मगर स्टार्ट फ्रॉम सोल। यस और नो? हम क्या मानते हैं? पैसा है और पैसा का मैं उपयोग करता हूं और मेरी मान्यता है इसीलिए मैं सुखी हूं, मगर ऐसा नहीं है। आत्मा है तो शरीर है, आत्मा नहीं है तो मुर्दा है। फिर साधन संपत्ति है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा डायरेक्शन ही गलत है। डायरेक्शन यहां से आना चाहिए, अंदर से, नहीं तो कहां से आता है? बाहर से। आम आदमी को पूछेंगे आप क्यों दुखी है? बोला हमको खाना नहीं मिलता है, हमारे पास रहने का अच्छा घर नहीं है, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, हमारे पास परिवार में, घर में अच्छे लोग नहीं है, इसीलिए हम दुखी है। तो मैंने कहा हम सब कुछ आपको अच्छा देंगे, जो बुरा लगता है अच्छा दे देंगे, और आत्मा ले लेंगे, चलेगा नहीं? तो पहले क्यों नहीं बोलते? अज्ञानता। कि आत्मा है, शरीर है, और ये बाहर के संजोग है, इसमें से सुख मिलना वो तो मेरी रॉन्ग बिलीफ है। मेरा आरोप है कि उसमें से सुख मिलता है। वो नहीं कहता है, मनी नहीं कहता है कि मैं सुख देता हूं, बोलते नहीं है। नहीं। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर कभी नहीं कहता है कि मैं आपको सुख दूं, कहता है? नहीं। आप मानते हैं। समझ में आया? जी। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर या मनी का स्वभाव सुख देना नहीं है। जी। अगर एक व्यक्ति दुखी है, फिजिकली कहो, मेंटली कहो, वो दुखी है, इसको डिसीज हो गया है, और उसको $1 मिलियन पाउंड रखोगे और उसकी गद्दी में आप सुला दोगे तो वो सुखी हो जाएगा? नहीं। क्योंकि लक्ष्मी में सुख है। नहीं। अगर सुख होता तो उनको सुख मिलता। यस और नो? लक्ष्मी व्यवहार चलाने का साधन जरूर है, सुख देने का साधन नहीं है। और हम मानते हैं लक्ष्मी से सुखी होते हैं, बस ये मान्यता कर। लक्ष्मी त्याग करने की बात नहीं करते हैं, उसमें जो सुख की बिलीफ है वो निकाल दो। व्यवहार करने के लिए जरूरी है। सुख तो मेरा स्वभाव है, और लक्ष्मी व्यवहार चलाने का साधन है। फूड जीवन जिंदा रहने का साधन है, कपड़ा
मर्यादा का साधन है, कार ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, घर रहने का साधन है, कौन मना करता है, मगर वो सुख का साधन नहीं है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। ये होना चाहिए। ये सब बातें काम की नहीं, ऐसा नहीं कहता हूं, जीवन जीने के लिए जरूरी है, मगर उसमें से सुख मिलेगा, यह रॉन्ग बिलीफ है। सुख तो मेरा स्वभाव है। ये सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी हो सकता हूं, और आज है, सत्ता संपत्ति संबंध साधन सब कुछ है, फिर भी लोग क्यों? अज्ञानता की वजह से। किसकी अज्ञानता है? मैं खुद कौन हूं वो नहीं जानता है, और ये मन वचन काया कौन चलाता है वो भी नहीं। बस यही अज्ञानता है, और कोई अज्ञानता नहीं है। तुम रामकृष्ण महावीर को मानते हैं, नहीं मानते, ये अज्ञानता नहीं है, ये तो धार्मिक सत्य है। सनातन सत्य को नहीं मानते हैं, वो अज्ञान है जी। कोई व्यक्ति को मानो या न मानो क्या फर्क होगा? कुदरती कानून में कोई फर्क नहीं है, वो तो आपकी मान्यता है। मान्यता से क्या मतलब? वो तो आपकी बिलीफ है, वो कोई सनातन सत्य नहीं है। मगर जो ये पूरा विश्व कुदरत ने बनाया 6 तत्वों से, और वो कुदरती कानून से चलता है, दिन होता है, रात होता है, पूनम अमास होती है, भरती ओट होता है, ठंडी गर्मी बारिश होती है, पहाड़ समुद्र, और ये जो वनस्पति हम खाते हैं वो कुदरत बनाते हैं। इट इज वी कैनॉट मैन्युफैक्चर। समझ में आता है? देन ऑल द क्रीचर्स दे कैन सर्वाइव विथ वाटर एयर एंड फूड। समझ में आया? वो तो कुदरत देती है, और हम कहते हैं हम कुदरत को मानते ही नहीं है, कुदरत के कानून को भी नहीं मानते हैं। कितनी अज्ञानता बताइए आप। फंडामेंटल जी, फंडामेंटल कि जिसके आधार से आपका अस्तित्व, ये पंच महाभूत भी कुदरत का है, एग्जिस्ट करते हैं। हवा पानी खुराक भी कुदरत ही देता है उनको, कर्मों के भुगतान के संयोग भी कुदरत देता है, ये शरीर का जो साधन दिया वो भी कुदरत ने दिया। हम कुदरत को ही नहीं मानते, कानून को भी नहीं मानते, कितनी अज्ञानता। फंडामेंटल, इट इज नॉट मैटर ऑफ सब्जेक्ट टू ये रिलीजन। ये सनातनता आपको नहीं मानते, ये अज्ञान है, और इसीलिए फिर कुदरत आपको पनिश करती है। जन्म से लेकर मौत तक हर संजोग कुदरत देते हैं। माँ बाप भाई बहन सब कुछ कुदरत देते हैं, कर्मों का फल भी कुदरत देते हैं। आप कहते हैं कुदरत को मैं मानता नहीं हूं, कुदरत के कानून को मानता नहीं हूं। आप समझे कितना अगेंस्ट। उनके बिना आपका अस्तित्व नहीं है, आप इसको ही नहीं मानते। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। जैसे व्यवहार में कहेंगे, व्यवहार में बाय रिलेटिव पॉइंट हम कहेंगे हम माता पिता को तो मानते ही नहीं है, तो बोला तुम्हारा व्यवहार से अस्तित्व को कैसे बना? उनके बिना हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कोई व्यक्ति व्यवहार में कि मैं माता पिता को नहीं मानता हूं, ऐसा हुआ क्या? कुदरत के बिना हमारा अस्तित्व हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसे हम ब्लाइंड हो गए, क्या हो गए? अंधे हो गए। ये कुदरत जब हमको हवा पानी खुराक देती है तभी ये शरीर का अस्तित्व रहता है। यस, मगर हम नहीं मानते। हम यही मानते हैं कि हम अपनी मेहनत से करते हैं, अपनी बुद्धि से करते हैं, चालाकी से करते हैं। कुदरत कहता है नहीं, न तुम्हारी बुद्धि है, न तुम्हारी मेहनत है, न तुम्हारी चालाकी है। ये दुनिया कर्मों से चलेगी, और आपको कर्म का फल कुदरत के कानून से मिलेगा, और वो कानून राम कृष्ण महावीर को भी सेम लागू होगा। समझ में आया? उसमें कोई पार्टीशन नहीं है, आपके लिए कानून अलग, आपके लिए आपके अलग। वहाँ स्टेटस की बात नहीं है, सबके लिए क्या है? इक्वल लॉ ऑफ नेचर। और उसी को समझना है, उसी को सनातन कहते हैं। धर्म का कानून को सनातन नहीं कहते हैं, सबका अलग अलग है। किसको सनातन कहोगे? जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आत्मस्वरूप। जो ઇવોલ્યુશન થતું જાય બરાબર, તો પછી એ લોકોના ઘાતી કર્મ તો ઓછા થતા જાય ને, ઘાતી કર્મ ઓછા થતા જાય ને, ના થાય? ઘાતી કર્મ ઇવોલ્યુશન એટલે જેમ કે કોણ ઇવોલ્યુશન? એટલે જેમ જેમ ઉપર જતું જાય
કર્મો હળવા થતા ના જાય તો પછી ભયંકર કર્મો તો ના જ બાંધે ને. કદાચ મને પ્રેઝન્ટ કરતા નહીં આવે. 1% અજ્ઞાન હોય તો પણ નરક ગતિના કર્મ બાંધી શકે એ આપણે કહી દીધું હા, છે. એ તો કીધું. તો પછી એનાથી ભારે કયું હોય પછી? કેમ આમ કરો છો? ના તો પછી એમની જાગૃતિમાં મહાન જેને આપણે ભગવાન તરીકે માની છે એ લોકો નરક ગતિમાં છે. વાય? હા, તો પણ બીકોઝ ઓફ કર્મ ઓર નોટ? જાગૃતિમાં ના આવે સ્લીપ થઈ જાય ને, અજ્ઞાન છે ને. તો પણ સ્લીપ થઈ જાય. અજ્ઞાનને ઝીરો કરવું પડશે. પછી તમારી જવાબદારી નથી. જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી તમે યુઝ કરી શકશો. યસ કે નો? બસ. પણ અજ્ઞાન હશે જ નહીં તો અજ્ઞાનને શું કરવું પડશે? That's it. There is no any other way. No excuse. No approximate. Exact zero કરવું પડશે. અને ઝીરો કરવું આસાન છે કારણ કે તમારો જન્મ, જીવન, મૃત્યુ આ બધું કુદરતને આધીન છે. શા માટે તમે એની વેલ્યુ કરો છો? તમારી વેલ્યુ કેમ નથી કરતા? આ દુનિયાની બધી વસ્તુને રિયલાઇઝ કરી છે બીકોઝ આઈ એમ. આ શરીર જીવતું છે બીકોઝ આઈ એમ. આ શરીર બોલે છે, વિચારે છે, ક્રિયા કરે છે બીકોઝ આઈ એમ. યસ ઓર નો? આ સત્તા, સંપત્તિ, સંબંધ, સાધનનો અનુભવ કરે છે બીકોઝ આઈ એમ. તો વેલ્યુ કોને હોવી જોઈએ? અને કરીએ છે ધેટ્સ ઇટ. એ લોકો પણ એટલી વેલ્યુ થઈ ગઈ હશે એમનાથી, થઈ ગઈ હશે. રિઝલ્ટ મળે મતલબ એક્ઝામ ના આપ્યો હોય, રિઝલ્ટ એમને આવે? विदाउट एग्जाम रिजल्ट आवे? रिजल्ट तो बताएगा ना. आप मानो या ना मानो. कोई कहता मैंने गलती नहीं किया है तो फिर जेल में क्यों जाना पड़ा बिना गलती? तो कहने का मतलब ये है गलती करोगे तो जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है. समझ में आया? ये कुदरत का कानून है. किसका है? वो कुदरत का कानून आप मानो या ना मानो, मान्यता के ऊपर काम नहीं करता है. वो सबके लिए एक था, एक है और एक ही. आप नहीं मानोगे तो भी वो कानून वही लागू पड़ेगा और मानोगे तो भी. आप नहीं मानोगे तो कोई अलग कानून नहीं लागू पड़ेगा. और कुदरत के कानून से ऊपर कोई नहीं है. समझ में आया? वो राम को भी वनवास करवाता है और कृष्ण भगवान का भी जन्म जेल में होता है और महावीर को भी जंगलों में घूमना पड़ता है. क्यों? कर्मों का सिद्धांत. जैसा कर्म किया वैसा फल देगा कुदरत हमको. यही तो गीता का ज्ञान है. यस और नो? दैट्स इट. यही तो बात है. हम नहीं समझते हैं ना. आप एक बात समझ लो, पूरी लाइफ में जन्म से मौत तक हमको मालूम है कि इस दुनिया में हमने जन्म लिया है और मृत्यु भी होने वाला है. दोनों भाग सुनिश्चित है. जन्म हुआ है और मृत्यु भी होगा. यस और नो? इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. यस. फिर जो शरीर को जलाना ही है, इसके लिए इतना मोह क्यों? इनको साधन समझो. क्या समझो? ये साधन साध्य प्राप्त करने के लिए, ये साधन विनाशी साधन को प्राप्त करने के लिए नहीं है. मगर अज्ञान है तो हम विनाशी साधनों में डूब जाएंगे और जब विज्ञान है तो हम सनातन सत्य को ढूंढ लेंगे. ये जहां तक जिंदा है वहां तक. ये साधन का उपयोग साध्य प्राप्त करने के लिए, ये साधन का उपयोग ये विनाशी साधनों को प्राप्त करने के लिए नहीं था, मगर मोह के वश हम उसमें डूबे हुए हैं. समझ में आया? और फिर राग द्वेष करके कर्मवाद के जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं. हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम खुद ही जिम्मेदार हैं. और कोई तो नहीं है. नहीं है. समझ में आया? पूछा. इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए स्वामी जी. ये 14 राजलोक कर्म भोगने का साधन है.
ये 14 राजलोक कर्म भोगने का स्थान है। इसमें कोई जीव सिर्फ आत्मा के तौर पर नहीं हो सकता है। सो ये थोड़ा सा कहने का मतलब ये कि ये पूरे जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, और यूनिवर्स को हिंदू फिलोसॉफी में 3 लोक बताया, मध्यलोक, उध्वलोक और अधोलोक। और जैन धर्म में थोड़ा शार्प बताया, 6 देवलोक, 7 नरकलोक और 1 मध्यलोक, इसका टोटल 14 हुआ। तो 3 लोक कहो या 14 लोक कहो, एक ही बात है। यू अंडरस्टैंड? और ये 14 राजलोक के अंदर कोई भी जीव या कोई भी आत्मा, न जीव आत्मा, शरीर के बिना नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि ये पूरा 14 राजलोक कर्मों की भुगतान के लिए है। और अगर कर्म नहीं बने और ये लास्ट शरीर का अंत हो गया तो वो 14 राजलोक से बाहर निकल जाएगा, जिसको कहेंगे सिद्ध क्षेत्र, जहां फिर जन्म मरण भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, बट नॉट इन 14 राजलोक। 6 आपने बोला देवलोक, 6 देवलोक, हाँ, तो 7 नरकलोक। तो 6 कैसे लेवल उसको कैटेगरी कैसे मतलब कि उसको डिफरेंट करेंगे? देवलोक के अंदर 1 2 3 4 5, राइट। 1 से 2 में जाओगे तो और ज्यादा पुण्य चाहिए, 2 से 3 में जाओ तो और ज्यादा, 4 में जाओ तो और ज्यादा, 5 में और 6ठे में हाईएस्ट पुण्य वाला व्यक्ति जा सकता है। ऐसे नरक गति में नीचे कहो, पहली नरक में कम पाप है, दूसरी नरक में ज्यादा किया है, तीसरी नरक में और ज्यादा, मैक्सिमम 7वीं नरक में मैक्सिमम पाप किया है तो वो वहां जाएगा। ऐसा कैटेगरी। और फिर उसमें आयुष्य भी होगा जी। आप समझे ना, जितना ज्यादा पाप तो आपका आयुष्य भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना कम आयुष्य पाप तो आयुष्य भी कम। सेम देवलोक में सब सेम प्रिंसिपल है। अगर आपने पुण्य कम किया है तो भुगतान भी कम होगी, पुण्य ज्यादा किया है तो भुगतान भी ज्यादा होगी। तो ये कैटेगरी समझते हैं ना, और कोई चमत्कारिक बात नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल। हमने उस जगह उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्या नहीं दिया? ध्यान ही नहीं दिया। समझ में आया? क्योंकि लोगों ने सनातन सत्य समझना छोड़ दिया, सांप्रदायिक सत्य में डूब गए, फॉर्मेट में ही डूब गए, फिर आगे कैसे जाएंगे? व्यक्ति को पकड़ लिया, क्रिया को पकड़ लिया, संस्था को पकड़ लिया, आप समझे, रिचुअल्स को पकड़ लिया, फिर आगे कैसे बढ़ोगे? फिर आपने फॉर्मेट में आ गए, बस यही मेरे लिए सनातन सत्य है, यही मेरे लिए मुक्ति का मार्ग है। तो फिर आगे क्या है वो समझने की कोशिश ही नहीं करोगे, क्योंकि आप तो वर्तुल में आ गए, सर्कल में आ गए। यूनिवर्सल ट्रूथ इज बियॉन्ड सर्कल। ये सर्कल का मतलब आप यूनिवर्सल ट्रूथ को नहीं समझे, और फिर आपके लिए सर्कल से बाहर निकलना आसान, क्योंकि सर्कल के साथ आपकी बिलीफ जुड़ गई, बस यही बराबर है। और जितनी बार सर्कल में जाओगे वो सर्कल ही पक्का करवाएंगे, सर्कल के बाहर निकलने की बात नहीं करेंगे, और आप करोगे तो भी खींच के लाएंगे, अंदर आ जाओ, फिर बाहर चले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही बाहर निकलने की बात करूंगा, खींच के लाने का वो प्रयास करेगा। हालांकि सनातन सत्य में तो कोई सर्कल है ही नहीं। यू ट्राई टू नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज नॉट अ व्यू पॉइंट। समझ में आया? तो ये बात है, और इसीलिए हम मानव से महामानव बनने की क्षमता रखने वाले हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं बन पाए? हमने ही हमारी शक्तियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जी। थोड़ा भी उसको मौका मिलता, थोड़ा, तो हमारे सबके पास शक्ति है, बहुत शक्ति है, और एक्सपांशन का बहुत स्कोप है। क्या है? इसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? हम जब गुलाम थे और आजादी प्राप्त किया, तब हमारे पास संसाधन नहीं थे, न खाना पीना, न कपड़ा, न टेक्नोलॉजी, तो नेसेसिटी ही नहीं थी। तो आप उसमें से बाहर निकलोगे तब ज्यादा सोचोगे ना। आज थोड़ी सुविधा मिल गई हमको, खाने पीने रहने की, कपड़े की, तो हमारी बुद्धि इतनी पावरफुल थी, वो बाहर आई। और आज अमेरिका के अंदर 50 फर्स्ट कंपनी है
उसमें से 35 CEO हिंदुस्तानी है, सुपर ब्रेन। आज जितने भी IT प्रोफेसर जो टॉप लेवल के हैं वो हिंदुस्तानी है। यस और नो? दे हैव अ ब्रेन। उनको अपॉर्चुनिटी नहीं थे। आज वर्ल्ड में देखो, अमेरिका में कहो, क्या जो आपके पास नासा में साइंटिस्ट है उसमें से 60% हिंदुस्तानी है। वाई? दे आर सुपर ब्रेन। आज लोग कहते हैं कि भाई अगर हमको तरक्की करना है तो शास्त्रों की क्या जरूरत है? भाई शास्त्रों ने तो ये सिखाया हमको। आज वेदांत कहो, आगम कहो, गीता कहो, उसी में तो ज्ञान है, उसी से तो लोगों ने ये सब संशोधन किया है। यस और नो? हमारे ऋषि मुनि ने तो बताया कि 1 से 0 क्या है, उनकी वैल्यू बताई। ये सूर्य कितना दूर है, चंद्र कितना, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। यस और नो? ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, रहस्य किसने बताया? ऋषि मुनियों ने, और उसी ने शास्त्र लिखा है। और आप कहते धर्म क्या करेंगे? आप समझे? ये तो ब्रह्मांड का सभी रहस्य हमारे शास्त्रों में छिपा हुआ है। अगर संशोधन करेंगे तो ये सब छोटे छोटे संशोधन है, वो तो कॉमर्शियल है। रूट यहाँ है, हमारे वेद में है, हमारे पुराण में है, हमारे आगम में है। समझ में आया? सबका रूट है। आज विश्व में कई सारे कंट्री वाला ऐसा है, हमारे पुराने शास्त्र ले जाता है, संशोधन करते हैं। आप समझे? क्योंकि रूट वहां है। समझ में आया ना? अच्छे तत्वों की बात हमारे ऋषि मुनि ने किया, ये तो बाद में समझते हैं। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि पुनर्जन्म है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, कर्म का सिद्धांत भी मालूम नहीं। उनको जो मालूम है वो तो बहुत छोटा एरिया है। ये दुनिया के जो साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज वाले, अभी एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला आज से 3 साल पहले। आप देखना रिकॉर्ड के अंदर, जापान के नहीं मालूम मेरे को, उनको नोबेल प्राइज मिला। किसमें मिला मालूम है? किसमें मिला? उपवास करने से हेल्थ अच्छी हो जाती है फॉर ऑल डिसीज। हमारे ऋषि मुनि ने तो हजारों साल से बताया है, बोलते नहीं है। इफ यू वांट टू क्लीन योर बॉडी यू डू द उपवास। यस और नो? और वो अभी बता रहे हैं, इनको नोबेल प्राइज मिलता है। नहीं, आप सोचो पहले, या आप देखना नोबेल प्राइज गूगल में किसको किसको मिला, किसके लिए मिला, आप देखो पहले। जो हमारा ऋषियों ने संशोधन किया है वही बात आज छोटी सी कर रहे हैं, इनको नोबेल प्राइज मिलता है। हमारे क्या कहते हैं, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने प्रूव कर दिया कि पैर के अंदर जीव है। जैन साधुओं ने प्रूव किया हवा और पानी में जीव है, अग्नि में जीव है, वो आज मान रहे हैं। हमारे तो शास्त्रों में हजारों साल पहले कहा है, वो तो साइंटिस्ट ही थे मगर वो सनातन धर्म, सनातन सत्य को मानते थे, तो वो साइंस ही तो था। आखिर अध्यात्म विज्ञान क्या है? साइंस ही तो है। आप समझे ना? मगर धीरे धीरे बिकॉज ऑफ ये टुकड़े होने से सब छूट गया, और ये अध्यात्म विज्ञान दोबारा जो हाइड हो गया है, आप समझे ना, इसको मैं रीओपन करता हूँ। क्या करता हूँ? ये नया विज्ञान नहीं है, जो था है और रहेगा, इसको क्या करता हूँ? रीओपन। ये बना नहीं रहा हूँ, है ही, सिर्फ मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। आप प्लीज प्रश्न कीजिए प्लीज। तो ये साइंटिस्ट लोग जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, ओके, ये तो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तो उनको तो वो संस्कार भी है ना, तो फिर भी ये लोग नहीं मानते ये सारे वेदों को। हमारे साइंटिस्ट मानते हैं, नहीं मानते हैं ऐसा नहीं, मगर जब हमारा साइंटिस्ट, क्योंकि द एनवायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, वो जब साइंटिस्ट ऐसा बोलेगा कि अमेरिका के साइंटिस्ट ने ये कहा है, यूरोप के साइंटिस्ट ने ये कहा है, आप खुद ही आपकी वैल्यू डाउन कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? दैट्स इट। हमारे साइंटिस्टों ने ये बताना चाहिए कि जो अभी नोबेल प्राइज मिला वो हमारे साधु संत सन्यासियों ने हजारों साल पहले कहा है, ये बताना चाहिए। तो बोलते नहीं है क्यों? नहीं बोलते, क्या करेंगे? एनवायरमेंट,
हम प्रभावित हो गए हैं भौतिक चीजों से, और इसीलिए हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो क्या हो गई, हाइड हो गई थी और है, मगर क्या हो गई, चली गई नहीं है। हाँ। मैंने किसी से सुना था कि अब तक जो ये सारे संसाधन ढूंढे हैं, फोन है, फिर वो जो कोई भी मेडिकल का है, वो लास्ट जो इन्वेंट किया था ना, तो लास्ट जगदीश चंद्र बोस थे, उन्होंने वहां तक किया था कि मेटल में भी क्या कहते हैं, आत्मा है। आत्मा के मतलब आत्मा नहीं, मेटल नहीं, ये वनस्पति के अंदर भी जीव है। वनस्पति में, इसके बाद मैटर में भी तो उन्होंने प्रयोग किया था कि रोड मेटल का रोड था, तो एक और साइनाइड रखा और फिर उसका जो ग्राफ किया ना, तो साइनाइड की असर उस पर भी होने लगी। कहने का मतलब ये था, उन्होंने ये कहने की कोशिश किया कि वातावरण के अंदर आवाज है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और यहाँ की आवाज 100, 200, 500, 1000, 2000 फुट के बाद भी सुन सकते हैं। इफ यू हैव अ वेवलेंथ, उसी के ऊपर तो ये बना है। बस वो उनकी लास्ट इन्वेंशन थी, इसके बाद किसी ने नहीं की, पर वो इन्वेंशन पर से ये आगे बढ़ाया उसको, वेस्टर्न ने आगे बढ़ाया। बस इनके पास किसी ने आज तक कोई इन्वेंशन नहीं किया। बिल्कुल बराबर है, मगर उनका तो कोई नाम नहीं देता है ना। ऐसा ही होता है, मैंने कहा ना, अपने आप को बड़ा बताने के लिए सच्चाई को छुपाते हैं, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं। यही बात है ना। और ये हमारे संस्कार नहीं थे, मगर क्योंकि हमको इस प्रकार की विद्या को बताया गया, इस प्रकार की बातों को बताया गया। आज की बात करूं, पॉलिटिकल बात करूं, हमको अभी तक, बिफोर नरेंद्र मोदी की बात करता हूं, बिफोर यही सिखा गया था कि अमेरिका सुपर पावर है, रशिया सुपर पावर है, चाइना हमारे से बहुत आगे। ये 3 सुपर पावर से हम पंगा नहीं ले सकते हैं। आज हमारे नरेंद्र मोदी ने सिद्ध किया, हम सभी सुपर पावर का बाप है। अमेरिका को भी हमारी जरूरत पड़ेगी, चाइना को भी पड़ेगी और रशिया को भी पड़ेगी। वी आर रियल सुपर पावर। समझ में आया? तो हम तो थे ही, मेंटली ऐसा बनाया गया था। आप समझो पहले मेरी बात, उसी को तो उन्होंने खुला किया कि रियल स्पीकिंग वी आर पावरफुल इन होल वर्ल्ड। आज हम चाहे तो पूरे विश्व के अंदर ये हिंदू फिलोसॉफी को स्थापन कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू फिलोसॉफी किसी को हार्म नहीं करती है, किसी को तकलीफ नहीं देती है। प्रेम, भाईचारा, वसुदैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, जियो और जीनोदो का सिद्धांत, सब समान और सबको, कोई भी पीड़ित को आसरा देना, ये हमारी संस्कृति है, कोई कमी नहीं है इसमें। मगर इसको हाइड कर दिया। तुम गरीब हो, तुम पुअर हो, तुम अज्ञानी हो, तुम्हारे पास खाना पीना नहीं है, ऐसा माइंड में डाल दिया गया। मगर ये नहीं बताया कि हम पैसा वाले थे तभी तो मुसलमान लूटने के लिए आए थे, हमारे पास गोल्ड डायमंड सिल्वर था तभी तो अंग्रेज लूटने के लिए आए थे। ये नहीं बताया, बोलते नहीं है। हम भिखारी नहीं थे, हमारे सब शास्त्र जला दिया क्योंकि हम ज्ञानी थे। ज्ञानी बनना नहीं था, थे ही। और शास्त्रों को जलाने के बाद तुम अज्ञानी हो, लूटने के बाद तुमको भिखारी हो। नहीं समझ में आया? किसने बनाया? समझ में आया क्या? नहीं, गलत ही सिखाया है हमको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब गलत सिखाया है। समझ में आया? आज पूरे वर्ल्ड के अंदर बेस्ट इकोनॉमी इंडिया की है, ग्रोथ के हिसाब, जीडीपी के हिसाब से। क्यों है? एक पावरफुल पर्सन बैठ गया सत्ता के ऊपर, तब उन्होंने बताया कि इंडिया क्या है। भले 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो जिम्मेदारी जरूर है, प्रॉब्लम भी है, मगर वो पावर भी है। वो पावर भी है, वो चाहे तो अच्छा भी कर सकती है, अगर इसको सपोर्ट मिले तो, कॉन्फिडेंस मिले तो वो सब कुछ कर सकते हैं। मगर तुम मेंटली उसको डिप्रेस कर दोगे, डिग्रेड कर दोगे, तो फिर क्या होगा? तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते,
सब कुछ कर सकते हैं। आज दुनिया के बेस्ट वेपन हम बना सकते हैं, ऐसा प्रूव हो गया। दुनिया की बेस्ट मिसाइल हमारे पास है। हम कमजोर क्या है ही नहीं। हम कमजोर थे ऐसा बताया गया था, थे नहीं। मेंटली दे प्रिपेयर, हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आप समझो, समझ में आया? हम पावरफुल ही है, मेंटली ऐसा बनाया गया। और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया? आपको उजागर किया, नहीं आप सब कुछ कर सकते हैं, गो अहेड विद कॉन्फिडेंस। हो सकता है गलती हो सकती है, गलती भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, मगर आगे बढ़ो। यू आर पावरफुल एंड सक्सेस वन डे इन योर फील्ड, दैट्स इट। आज मोटिवेशन देते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि शक्तिशाली है। इन्वेंशन करते हैं, युवा युवती करते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया। नहीं, कहने का मतलब ये प्रधानमंत्री ऐसा था जिन्होंने भारतीयों की शक्तियों को देखा कि है, मगर मेंटली उसको ऐसा कर दिया है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो पुअर हैं, हम तो हैंडीकैप है। ये बड़े बड़े कंट्री के सामने हम तो हैंडीकैप है, हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी आज्ञा से ही जीना पड़ेगा, ऐसा हमको प्रिपेयर कर दिया है। समझ में आया? तो बात ये है, और इसीलिए हम शक्तिशाली थे, है और रहेंगे, मगर थोड़े समय के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन हम पावरफुल होते हुए भी हमारा पावर बाहर निकालने के लिए संजोग ही नहीं दिया, और जो कुछ आगे बढ़ना चाहा इसको गिरा दिया गया। समझ में आया? इसमें काल चक्र भी वो तो बाकी तो कर्मों का सिद्धांत तो रहेगा, वो तो ओवरऑल है, उसमें तो हम उसको तो मानना ही पड़ेगा। मगर वास्तविकता ये है कि हमारी जो वीकनेस थी वो हम खुद ही थे। हमारे अंदर के लोगों ने हमको वीक बनाया था मेंटली। आज हमारा सन्यासी हिमालय में जाके भी बहुत बड़ा संशोधन कर सकता है विदाउट एनी मनी एंड इंस्ट्रूमेंट। इतनी ताकत हिंदुस्तानियों के पास है। समझ में आया? उसको उजागर करने की जरूरत है। क्या है? दैट्स इट। आज मैं सबको क्या कहता हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, कोई प्रकृति में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। खुद के ऊपर विश्वास रखो और दुनिया के सनातन सत्य को जानो, दैट्स इट। इसको तो जलाना ही है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये सत्ता संपत्ति संबंध साधन तो छोड़ना ही है। अपने आप में क्यों विश्वास नहीं बढ़ता है? और दुनिया के अंदर सुख दुख की क्या अपेक्षा करते हो? ये तो विनाशी अवस्था है, आज है और कल नहीं है। सनातन देखो, दुनिया में सनातन क्या है? कुदरत का कानून, 6 सनातन तत्व, ये सनातन है। हम आत्मा के रूप से सनातन है, बाकी सब विनाशी है। विनाशी में डूबने की क्या जरूरत है? हमारे सब महान पुरुषों ने क्या बताया? घर बार परिवार छोड़ के जंगलों में चले गए साधना के लिए, सनातन सत्य को पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए नहीं, स्टेटस पाने के लिए नहीं, शिष्य बनाने के लिए नहीं, खुद की खोज के लिए गए थे। तभी हम इसको भगवान कहते हैं। आप समझे ना? यही उन्होंने सिखाया था, मगर धीरे धीरे ये सब बातें क्या कर दिया? साइड में कर दिया। यही तो हमारी कमजोरी है। और आज मैं यही बातें बताना चाहता हूं कि हमारी कमजोरी ये है कि मेंटली हम गलत रास्ते पर चले गए और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, एडप्ट भी कर लिया। आज पूरे भारतवर्ष के कोई भी हिंदुस्तानी है, कोई भी जगह जाता है तो एज अ इंडियन इसको रिस्पेक्ट से देखते हैं। पहले क्या देखते हैं? गरीब है, ये तो भिखारी है, उनको कुछ आता ही नहीं है, उस दृष्टि से वो देखते थे। आज कहते हैं इंडियन इज पावरफुल, इज अ सुपर ब्रेन, इज अ गुड कल्चर मैन, ऐसे लोग देखते हैं। आप समझे ना? तो एक व्यक्ति क्या कर सकती है वो करके दिखाया, यस और नो? यही सिस्टम तो यही है ना, ऊपर से नीचे तक यही सिस्टम है ना। सभी व्यक्तियों को चेंज नहीं किया ना उन्होंने, मगर एक व्यक्ति का कॉन्फिडेंस और एक व्यक्ति की प्योरिटी दूसरे को भी मजबूर करते हैं प्योर होने के लिए।
एक व्यक्ति का 22 घंटा 24 घंटा काम करने की क्षमता वो दूसरे को काम करने के लिए मजबूर करते हैं। सिर्फ भाषण से काम नहीं होता है, आपको खुद को एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कंट्री ऐसे सफाई नहीं होती है, आप 2 बार 5 बार 10 बार नीचे से टुकड़ा उठा के डस्टबिन में डालोगे, द पीपल दे सी यू एंड देन दे फॉलो यू। सिर्फ जबान से भाषण करने से नहीं होता है, एप्लीकेबल इन योर लाइफ। एक बार बोल दिया कि तुमने 5 लाख का सूट पहना, वो भी किसी ने दिया था, आप समझो मेरी बात। और विरोधियों ने, विरोध पार्टियों ने कंप्लेन किया, तब से लेके आज तक नरेंद्र मोदी ने सूट नहीं पहना। दैट इज द प्योरिटी। मैं जो हूं वो हूं, मैं कपड़ों से महान नहीं हूं, मैं कैरेक्टर से महान हूं, मैं देशभक्ति से महान हूं, मैं अपनी नियत और नीति से महान हूं, कपड़ों से नहीं। और हमारे महान पुरुषों में से एक स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे, तब अमेरिका के पत्रकारों ने कहा कि यहाँ आप आए वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, और यहाँ देखो लोग सूटेड बूटेड अप टू डेट होकर आए, और तुम्हारे कपड़े में न सिलाई है, न बटन है, न पॉकेट है, न कोई डिजाइन है, न कोई कलर है। ऐसा कपड़ा, भिखारी जैसा कपड़ा पहना है। आप समझे, अप टू डेट होके आइए। इतने सारे वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, तो तब उन्होंने क्या बताया मालूम है? उन्होंने कहा हमारे देश के अंदर कपड़ों से इज्जत नहीं होती है। क्या बताया? हमारे देश के अंदर कपड़ों से इज्जत नहीं होती है, कैरेक्टर से इज्जत होती है। दिखावे से इज्जत नहीं होती है, ज्ञान से इज्जत होती है। ये बात है। ये एक प्रकार का गौरव था। जो भी थे हम उस समय गुलाम थे, गरीब थे, फिर भी कितना आत्मविश्वास था। दैट इज टू बी कॉल्ड कॉन्फिडेंस। ऐसा होना चाहिए। मरना तो है ही एक दिन, वो कोई नई बात थोड़ी है। जब रामकृष्ण मठ् का भी अंत आया तो क्या मरा नहीं आएगा? मगर मरे तो ऐसे मरे कि लोग याद करें, somebody they follow your principles, your thoughts, your character, somebody they follow. That is the important thing. बाकी तो क्या है, जीना बनना तो सबको है ही। और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर यूनाइटेड होने की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है। अगर राष्ट्र को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, तो एक होना बहुत जरूरी है। और अगर हम 140 करोड़ एक हो गए तो पूरी दुनिया को झुका सकते हैं। आप समझे ना, इतना पावर हमारे पास है। इसको सिर्फ क्या करना है, कनेक्ट करना है बस। अब चेंज आ रहा है। नहीं, आएगा ही, नो डाउट एट ऑल। इट विल टेक टाइम्स, मगर होगा। तो वैसे भी है जो वेदों में इंटरेस्ट लेने के लिए सबका एनकरेज कर रहे हैं। वेदों में वेद आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। पूरा विश्व आज हमारे तरफ देख रहा है। आज देखो यहाँ भूख मरा है, लोग भारत की ओर देख रहा है। आज वैक्सीन भारत की ओर देख रहा है, वेपन भारत की ओर देख रहा है। जब रशिया यूक्रेन का वॉर, भारत की ओर देख रहा है। दुनिया के कितने बड़े बड़े मिनिस्टर भारत में आ गए। क्यों आ गए भाई? आपको तो अमेरिका जाना चाहिए, यूरोप जाना चाहिए, भारत में क्यों है? दे नोज द नरेंद्र मोदी इज अ वर्ल्ड लीडर टुडे। उनकी जबान होती है ना, तो दुनिया के लोग उनको सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप समझे, इज अ वर्ल्ड लीडर। और हमको गौरव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दैट्स इट। और कितनी सिंप्लिसिटी। कोई बैंक बैलेंस नहीं उनके पास। 1 करोड़ रुपया जो है वही है। और जब चीफ मिनिस्टर था तभी भी 1 करोड़ रुपया था, प्राइम मिनिस्टर है तभी भी 1 करोड़ है उसके पास। और जो पैसा आता है वो दे देते हैं। जो लोग गिफ्ट देते हैं उसको हराजी करके गरीबों को बांट देते हैं। उनको चाहिए ही क्या? ना उसके नाम के मकान है, ना उनके नाम पे कार है। आप देखो, उसके नाम पे मकान नहीं है, कार भी नहीं है, और कोई मिलकत नहीं, जमीन भी नहीं है उनके ऊपर। उनकी जो जमीन थी वहाँ गुजरात में उनको दिया गया था, प्लॉट देते थे ना, वो दिया था, वो भी दे दिया। उनका पैसा गरीबों को बांट दिया। क्या चाहिए आपको?
और एक प्योरिटी वाला व्यक्ति का पावर क्या होता है ना, वो दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर देख दिया। आप समझे ना, प्योरिटी इज अ पावर, मनी इज नॉट अ पावर। इसमें से ही आती है ना, आत्मा बस से निकलती है। सेल्फलेस। कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है सबका सुनेंगे, मगर जब नरेंद्र मोदी बोलेगा सब अटेंशन हो जाए वो क्या कहता है। सो दैट इज अ मैटर ऑफ पावर। शब्द नहीं है, वो पावर है, इसीलिए पावर बोलता है। बाद में उनके जबान से निकली हुई बातों को लोगों को फॉलो करना पड़ता है। इट मीन इज पावर। बोलेंगे तो सब बोलेंगे, सभी की बोली में वैल्यू नहीं है, सुन के निकाल देते हैं। जब नरेंद्र मोदी बोलेंगे सब लोग सुनेंगे, क्योंकि वो फॉलो करना है, क्योंकि उनको बात कभी किसी को गिराने की या गलत बताने की नहीं है। पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट कैसे होगा वो बताते हैं। समझ में आया? तो ऐसी बात है, और हमको ये बात समझनी चाहिए कि ये जहाँ तक हम इस दुनिया का सनातन सत्य समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वहाँ तक हम खुद की दृष्टि को परिपक्व नहीं कर सकते हैं। और जब खुद की दृष्टि को परिपक्व नहीं करेंगे तो फिर हम यही कंफ्यूजन में जिएंगे और मरेंगे। समझ में आया? अभी प्रार्थना कर लेते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको भेदभाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं दृष्टि से जो भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को वो सभी दोषों को आपके समक्ष आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। उनके लिए उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूं। और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।